جناب علی ٹائم جو ہے نا یہ ایک بڑی مزیدار سی چیز ہے. ہم سب ٹائم ہیں, ہم سب کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو ہم ختم ہو جاتے ہیں, ہم چلے جاتے ہیں. ساری چیز ٹائم پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں. ایک ہی مین انگریڈینٹ ہے, ایک ہی بنیاد ہے جس کے اوپر یہ ساری چیزیں بیس کر رہے ہیں. ٹائم ختم, ہر چیز ختم. ٹائم شروع, سب چیزیں شروع. ٹائم بیس ہے, بنیاد ہے. اس بندے کو آپ جانتے ہوں گے, ساری دنیا جانتی ہے اس کو. کیا نام ہے جی اس کا؟ بل گیٹس ہے جی, ٹھیک ہے نا جی. اور یہ دنیا کا امیر ترین آدمی. کہتے ہیں جی کہ ایک وقت میں ماڈرن ایج میں سب سے زیادہ امیر آدمی یہ بل گیٹس ہوا تھا, ٹھیک ہے. اور یہ 6 سے 7 سال امیر آدمی رہا دنیا کے اندر. اس میں بہت ساری کمپنیوں کے اندر انویسٹر کے طور پہ کام کر رہا ہے, انویسٹمنٹ کر رہا ہے بہت. ٹوٹل نیٹ ورتھ جو ہے نا اس کی وہ ہے $118.7 بلین. اس کی اپنی پرسنل کمپنی کے نہیں, ذاتی کمپنی اس کی بہت بڑی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اپنے اکاؤنٹ کے اندر $118.7 بلین ہیں. پاکستان $1 بلین کے لیے IMF کے سامنے لیٹا ہوا تھا, منتیں کر رہا تھا. ہم نے 3 دن جنگ اپنی ڈیلے رکھی کہ امریکہ کہ انڈیا کے مار گیا ہے, 2-4 دن انتظار کر لیں تاکہ ہمارا سائن ہو جائے, ہمیں $1 بلین مل جائے, بجائے اس کے کہ امریکہ اس کو روک دے اور ہمیں نقصان ہو جائے اور ہم IMF جو ہے نا ہمارے رگڑا نکال دے گا. $1 بلین کے لیے 3 دن ہم بےزتی برداشت کر کے چپ کر کے بیٹھے رہے کہ یار وہ سائن ہو. اور ایک اکیلے آدمی کے پاس جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں $118.7 بلین, ٹھیک ہے جی, ایک اکیلے آدمی کے اندر, ٹھیک. اب ہوا کیا ہے جناب, اس کی جو انکم ہے نا وہ بڑی مزیدار انکم ہے. یہ ایک سیکنڈ میں $127 کماتا ہے. ایک سیکنڈ میں $127 کماتا ہے. اور 1 منٹ میں یہ کتنے کما لیتا ہے؟ $7,610. $7,610 1 منٹ میں کما لیتا ہے. کتنے پیسے بنتے ہیں؟ ملٹیپلائی کرو. ہے 20 لاکھ روپیہ 1 منٹ میں کما لیتے ہیں, 1 منٹ میں, ٹھیک ہو گیا. اور گھنٹے میں کتنا کما لیتا ہے جی یہ؟ گھنٹے میں دیکھیے گا $4,56,625 یہ کتنے میں کما لیتے 1 گھنٹے میں. کنٹینیوس سسٹم چلی جا رہا ہے. اور 1 دن میں کتنی انکم ہے اس کی؟ 1 دن میں نہیں, 1 دن میں کتنی ہے دیکھیں ذرا. ہاں 1 کروڑ نہ 1 کروڑ 9 لاکھ. ہاں جی 59 کتنا ہوتا ہے تقریباً کتنے پیسے بن جاتے ہیں اس کے؟ 3 ارب روپیہ جو ہے نا یہ بندہ روز پھڑکا دیتا ہوں, ٹھیک. میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی بندہ ہوگا ایسا کہ جو روزانہ جو ہے 3 کروڑ روپیہ کما رہا ہو. مجھے لگتا ہے پورے پاکستان کے اندر 25 کروڑ لوگوں میں کوئی ایک آدمی ہوگا جو روزانہ 3 ارب روپے کما رہا ہو, ٹھیک ہے. اور اس کی عمر اس وقت کیا ہے؟ 69 ایئرس ہے. اور اس نے 40 سال کی عمر تک یہ سب کچھ کر لیا تھا. 40 سال کی عمر تک اس نے سب کچھ کر لیا تھا, ٹھیک ہے. اب اس کی عمر کتنی ہے؟ 69, ٹھیک ہو گیا جی. اور 40 سال کی عمر تک اس نے کر لیا تھا. اور 40 کے بعد اب 69 تک کتنے بنتے؟ 29 ایئرس. 29 ایئرس میں یہ روزانہ 1 سیکنڈ کے اندر $127 کما رہا. پچھلے 29 سال سے اس کی دولت جو ہے اس کو دولت کما کے دی جا رہی اور وہ اپنی دولت کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے. 29 ایئرس میں اس نے کوئی ایکٹیو کام نہیں کیا, کمپنی اس کی چلی جا رہی ہے بس. اب وہ اس نے کوئی نہیں چل کر رہا, ٹھیک ہو گیا. آگے چل کے میں آگے بتاتا ہوں جناب. یہ دوسرا بندہ ہے جی. اب یہ جو دوسرا آدمی ہے اس کو بھی جانتے ہوں گے آپ یقیناً. کون ہے یہ؟ کون ہے؟ اسٹیو جابز ہے, ٹھیک ہو گیا. اور اس نے کیا کیا ہے کہ ٹوٹل ریونیو جو ایپل کمپنی کا ہے نا وہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی اس وقت ہے. $365.82 بلین کی اس بندے نے پورا ایک کمپنی کھڑی کی اور اس کا یہ ریونیو 365. پاکستان کی ٹوٹل GDP جو ہے وہ 295 ہے. 25 کروڑ لوگ پورے سال جو پیسہ کماتے ہیں وہ $295 بلین ہے, ٹھیک ہے. 295 بلین. اور جب 3 سے اوپر ہوتے ہیں نا ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کیا. اور یہ بندہ اکیلا ایک کمپنی اس نے جو کھڑی کی اس کا جو ریونیو وہ آپ کے سامنے, ٹھیک. اس کی جو نیٹ ورتھ
25 साल की उम्र में बन गई थे ना, वो $250 मिलियन है। ये आपको ना सारी स्लाइड्स मिलेगी भाई साहब, सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, ये आपके ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक, आप सिर्फ इस पे फोकस करें, उसका फायदा ये है कि आप ज्यादा लर्न करें। ये सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। बेसिकली ये मैं वीडियो की टीम को शेयर कर रहा हूं। ठीक है, फिर कोई इशू। अच्छा, इसका ये है कि जनाब ये जब 25 साल का था तो इसके पास $250 मिलियन हो चुके थे। $250 मिलियन कितने पैसे बनते हैं? कितने पैसे बनते हैं वैसे? लाइयो साहब, $1 बिलियन कितना बनेगा? $1 बिलियन बनेगा 300 अरब। तो 300 अरब को 4 पे तकसीम कर दें, बड़ा सिंपल। 70 अरब और 500 मिलियन। हाँ, तकरीबन ठीक हो गया। ये बंदा जो था ना 25 साल की उम्र में, इसके पास तकरीबन 71 अरब रुपया हो गया हुआ था। ठीक हो गया जी। और इस बंदे ने कंट्रीब्यूशन इसका क्या, 3 बड़े कंट्रीब्यूशन है सर इसके। एक तो इससे म्यूजिक इंडस्ट्री को तब्दील कर दिया। इससे पहले वॉकमैन होते थे, आपने देखा कान में लगा के ना, ये कैसेट डाल के उसके अंदर घूम रहे होते थे। तो इसने उसको कन्वर्ट करके किस पे कन्वर्ट किया? आईपॉड पे। और इससे पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को रीशेप करके रख दिया। पूरे आपको तो टेप रिकॉर्डर खत्म हो गया, वॉकमैन खत्म हो गया आपके सामने, कैसेट्स की इंडस्ट्री खत्म हो गई सारी। फिर उसके बाद फ्लॉपी वाली एक आता था, फ्लॉपीज खत्म हो गई सारे। फिर उसके बाद एक और आता यूएसबी वाला, वो भी खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ऐसा पूरा का पूरा रीशेप करके रख दिया एक ही बंदे ने चंद सालों के अंदर। ठीक है। अच्छा जनाब, इसने पूरी इंडस्ट्री जो थी ना वो तब्दील कर दी उसको। ठीक है। और म्यूजिक की इंडस्ट्री हर चीज रीशेप कर दी एक ही लाइफ के अंदर, चंद सालों के अंदर। कमाल देखे उस बंदे का। और उसके बाद उसने बटन्स वाले फोन जो थे उनको टच स्क्रीन में कन्वर्ट कर दिया। हमारे देखते देखते सारे फोन होते थे, है ना, नोकिया के। अब उससे गिट्टे साफ करते हैं लोग, इसके अलावा कोई काम नहीं है उसका। चेंज कर दिया उसने सर पूरी फोन इंडस्ट्री जो है ना, और पूरा सोशल मीडिया इंडस्ट्री बदल दिया उसने। और हमारी जिंदगी में लैपटॉप निकल गया, हमारी जिंदगी में उससे पहले पीसी निकल गया। ऐसे ही हुआ ना जी, हमारी जिंदगी में जो फोन थे बटन्स वाले वो सारे निकल गए देखते देखते चंद सालों में। और अब अगर हम सोचते हैं खुद ही तो हमें यकीन नहीं आता कि ये भी दौर था एक। और चंद सालों की बात है, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है मैडम, है ना, चंद सालों की बात। कंट्रीब्यूशन देखे इस बंदे का, कमाल नहीं इस बंदे ने किया सारा। और इसके साथ साथ इसने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी। तीसरा कंट्रीब्यूशन ये इसने बताया कि आप अकेले आदमी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में बना सकते हो, जिसकी प्रोडक्ट दुनिया के हर कोने में मौजूद हो। कोई ऐसा कोना ना हो, कोई ऐसी जगह ना हो कि जहां पे आपकी प्रोडक्ट ना हो। एक ही बंदे ने। और मर गया 51 साल की उम्र में, 51 साल, 51 ईयर्स की जिंदगी में फोत हो गया। यहाँ 51 साल के कितने बंदे हैं? हाथ खड़ा कर रहे हैं। 51 साल के कितने लोग? उच्चा हाथ खड़ा करो, की हो गया तुम्हें? देखो ना, बच्चे बनाने की कोशिश कर। हाँ जी, तो वो आप 51 से ऊपर है ना, इतना काम करके बंदा चला गया। ठीक है, 51। अच्छा, अब मसला ये है कि टाइम क्या है। उनके पास भी टाइम था, हमारे पास भी टाइम है। उनके अंदर क्या फर्क है, हमारे अंदर क्या फर्क है? ठीक है, वो भी ह्यूमंस हैं, हम भी ह्यूमंस हैं, कोई फर्क नहीं है। हमारी तरह 2 टांगे हैं, 2 हाथ हैं, ये छोटा सा ब्रेन है, थोड़ा छोटा सा दिल है, ऐसा ही है ना। 2 ही गुर्दे हैं, कोई तीसरा गुर्दा भी लगा के नहीं आया बंदा। लीवर भी वही है, या कोई एक्स्ट्रा लीवर ही लगाया होता उसने। 2 ही बिल गेट्स है तो जो कुदरत ने कहा कि 2 लीवर लगा दें, एक उसने यहाँ पे ब्रीफ केस में रखा होता। ठीक, या उसको अल्लाह ताला 3 दिमाग दे देता कि एक यहाँ पे रख लो, 2 वैसे कैरी करते रहो। हाथ ही को 4 दे देता है कि 2 से हाथ कर रहा है, काम कर रहा है। एक जो पीछे वाला हाथ है वो खरखना कर रहा है पीछे उसको ना, ऐसे 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 ऐसे, या मसाज कर रहा है उसको, वो भी कोई नहीं। टांगे भी वही हैं। और या फिर कौन है, अल्लाह ताला का बिल गेट्स है तो इसका दिन 48 घंटे का कर दें, तो बड़ा आदमी है। या स्टीव जॉब्स है तो इसका टाइम बड़ा होना चाहिए, इसका घंटा जो है ना वो 4 घंटों के बराबर होना चाहिए, वो भी कोई नहीं। खाना भी वही खाता था जो आपकी तरह मेरी तरह, बल्कि हमसे कम खाना खाते हैं, हम तो ज्यादा खाते हैं। हम तो 2-3 घंटे लगा देते हैं खाना खाने में, उसका कोई 1-2-4 मिनट का खाना होता है। तो कोई खास फर्क नहीं है उसके अंदर मेरे अंदर। स्किन का भी है, आप जितने खूबसूरत है इतना बिल गेट्स कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है ना जी। तो कोई खास फर्क कुछ भी नहीं, कुछ भी फर्क नहीं है। होता ना कुछ चीज खास होती,
खास भी कोई नहीं दोनों के अंदर। लेकिन मसला क्या है? मसला और है, एक अप्रोच का फर्क है जिसको उसने कैरी किया और हम कैरी नहीं कर रहे। एक अप्रोच का देखें, एक बैट्समैन में और हम में फर्क क्या है? उसको बैट चलाना आता है, हमको बैट चलाना नहीं आता। हम सीख जाते हैं, हम भी बैट्समैन होते हैं। एक बॉलर में हम में क्या फर्क है? उसको बॉल फेंकनी आती है, हमें बॉल फेंकनी नहीं आती। एक फ्रेंच में और एक पंजाबी में क्या फर्क है? उसको फ्रेंच आती है, हमें फ्रेंच नहीं आती। ऐसे ही है ना ये। डोनाल्ड ट्रंप में और हम में क्या फर्क है? वो अंग्रेजी जानता है, अमेरिका में आया, व्हाइट कलर है, बिजनेस कर लेता है, हम वो नहीं कर रहे। हम वो कर लेंगे, हम भी वो बन जाए। इशू सिर्फ करने का है जी, इशू सिर्फ अप्रोच का है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। कुदरत ने उसको कोई खास चीज एक नहीं भेजी जो हम में नहीं है। कोई एक चीज भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है कि डबल ब्रेन हो, डबल हार्ट हो, 4 टांगे हो, 4 हाथ हो, कोई 40 उंगलियां हो उस बंदे की, या दिन उसका 48 घंटे का हो। कोई सिर्फ अप्रोच का फर्क है। और वो अप्रोच का जो फर्क है वो स्टीव जॉब को स्टीव जॉब बना रही है और बिल गेट्स को बिल गेट्स बना रही है। सिंपल। और अगर हमने वहां जाना है या वो करना है तो हमने क्या करना है? हमने अपनी अप्रोच ठीक करना है। मुझ में और एक साइंसदान में क्या फर्क होता है? ये फर्क होता है कि उसने साइंस सीखी है, उसके यहां पे साइंस है, मेरे यहां पे आर्ट्स है। मुझ में एक डॉक्टर में क्या फर्क है? उसके यहां पे मेडिकल साइंस है, मेरी यहां पे राइटिंग स्किल है। तो दोनों में ये फर्क। एक कामयाब आदमी और मेरे अंदर क्या फर्क है? उसकी यहां पे कामयाबी है, मेरे यहां पे नाकामी है। इतना फर्क है, और तो कोई फर्क नहीं है। कुदरत तो आपके साथ या मेरे साथ कोई जुल्म नहीं कर रहे, उसने तो इक्वली पैदा किया। हर बच्चा एक ही तरीके से, एक ही प्रोसेस से, एक ही वजन के मुताबिक पैदा होता है, कोई फर्क नहीं है उसके अंदर। यहां पे सॉफ्टवेयर का जो कुछ है यहां पे है। यहां से हम ईसाई होते हैं, यहां से हम यहूदी होते हैं, यहां से हम हिंदू होते हैं, यहां से हम मुसलमान होते हैं, यहां से हम अच्छे होते हैं, यहीं से हम बुरे होते हैं, यहीं से हम कामयाब होते हैं, यहीं से हम नाकाम होते हैं, इस जगह से। ठीक, जो कुछ करना है इसके ऊपर करना है आपने। और ये हमारी बॉडी का 2% है, टोटल 2% है। और इस 2% को आपने बस चेंज करना है, 98% खुद बहुत ठीक हो जाएगा। क्योंकि यहां से, ठीक, एक शिया और सुन्नी में क्या फर्क? यहां पे, और तो कुछ नहीं, और दुनिया में कोई कुछ नहीं। एक शिया हो वैसे लगता है, एक सुन्नी वैसे लगता है, एक यहूदी में मुसलमान में क्या फर्क? दोनों एक जैसे। यहां पे फर्क। तो चीज जो है ना, यहां से, वो जो दोनों थे उन्होंने यहां से ठीक कर लिया था।